Trishla, hi. Hi, Swamini. Hi. Hi. So, Trishla, our today's speaker is Mr. Kartikeya. Okay. Yeah, we'll ask them to make Yeah, him a I'll just co-host, request him. Yeah, I'll just request him. and we Yeah, are he has expecting signed the few more. co-host. Uh, Yeah. Let's wait for another couple of minutes before we start. Yeah. Trishla, let me know when we have to begin the session. Yes. Let's wait for a few minutes. A very good afternoon, everyone. Ladies, I have an announcement to make. It'll be very nice if we can give a short feedback, in the form of a video, like a testimonial or something on the sessions that are happening from Motilal Oswal. We are having very nice speakers every week, and I'm sure we are learning a lot of things which are a benefit for all of us. So I would request a few ladies to please send the testimonials in form of videos, short videos, or maybe 30 to 60 seconds of video. You can either personally send it to me, I'll share my number on the chat box, or you can post it in the group also. Thank you so much. We'll just start the session in a while. Okay, ladies, let's start the session without wasting any more time. Can I request JLW from Goregaon chapter to please play the Navkar mantra? ॐ नमो वरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं ईशोपनिषदां
Hi, Swamini. We'll welcome Kartike, our speaker for the day. Without wasting much time, over to you, Kartike. So, Trishla, before handing over to Kartikeya, I would like to introduce Mr. Kartikeya is Yes. from Training, and Development Department. He is heading option training, and he's a seasoned professional, boosting a diverse skill set at Motilal Oswal. And in today's topic, friends, we are going to cover and we are going to understand the basics of derivatives, what is option, what is future, and how derivatives work in our day-to-day, how it is considered, how the risk and rewards are calculated considering our portfolio. So, Kartikeya, today's participant are all Jito females who are so the batch is mix of freshers and experienced women. So I would request you to keep this session in English and Hindi both. Else, जैसे त्रिशला ने बताया था फ्रेंड्स कि टेस्टिमोनियल्स दीजिए प्लीज अ स्मॉल बाइट्स और वीडियोस सो दैट आपको कोई भी सेशन ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा. वी हैड डन टिल नाउ आई थिंक 8 to 9 सेशंस. जहाँ पे भी आपको कोई सेशंस अच्छा लगा होगा प्लीज़ गिव अपने. मुझे काफी सारे व्हाट्सएप आ गए थे ग्रुप में बट स्टिल वी यू कुड गिव अस योर अंडरस्टैंडिंग एंड द बेनिफिट्स फ्रॉम दीज वीडियोस व्हाट फ्रॉम दिस सेशन व्हाट यू गॉट. सो आई जैसे त्रिशला ने बताया था आप प्लीज वो उनको व्हाट्सएप कीजिए. ओके, ओवर टू यू कार्तिक. Okay, thank you, Swamini, and uh, good evening, everybody. Thank you for taking time off on a weekday to be a part of this session. मुझे बताया गया था कि this is a kind of a ongoing learning initiative. Uh, या त्रिशला आपको you have something to ask? I think you have raised your hand. Okay. So I think I'm given to understand you have been going through a lot of learning interventions. So today happens to be a session on derivatives. So obviously we will talk about derivatives, क्या है, options क्या है, थोड़ा discuss करेंगे. So let me start the session with a very blunt question. Okay, how many of you trade in derivatives? So I'll make it interactive. Okay, so that I can I can make sure कि all are walking at my pace. तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा तो feel free to unmute and speak anytime. So how many of you have first hand exposure in derivative segment, options में या futures में trade किए हैं? Anyone? Maybe you can unmute and share. Friends, please on your videos. Yeah, I think that would help. Otherwise, I will feel kind of isolated. कोई ट्रेड करते हैं क्या डेरिवेटिव्स में? और यू डोंट ट्रेड बट सुना तो बहुत है इसके बारे में. If you have heard about derivatives but don't know what it is, okay. But let me tell you, the very fact that we are having a session today on derivative, it talks volume about its relevance. And you might be aware, India or NSE to be very precise, happens to be world's largest derivative exchange in the world. अगर आप ट्विटर देखेंगे तो एवरी थर्सडे निफ्टी ऑप्शंस ट्रेंड्स. Our turnover is at all time high, popularity is gaining. तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ऑप्शंस? अभी स्वामिनी ने भी मुझे अप्रोच किया था कि वी वुड लाइक टू हैव ए डेडिकेटेड सेशन ऑन डेरिवेटिव्स. आपका ये लर्निंग इनिशिएटिव में उसके ऊपर भी एक डेरिवेटिव का सेशन है. तो व्हाट इज मेकिंग दिस ऑप्शन सो पॉपुलर? एक इसी एक लेट मी टेल यू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. A friend of mine, uh, he he talks to me. uh, ये जो derivatives है ना, it is such a hyped product.
आफ्टर ऑल व्हाट इज डेरिवेटिव्स, अगर आप उसका एक सिंपल सा गूगल डेफिनेशन ढूंढेंगे तो इट गोज बाय दिस सिंपल डेफिनेशन, एनीथिंग व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू। तो वो क्या बोलता है कि डेरिवेटिव क्या है, अल्टीमेटली इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम इट इज अंडरलाइन, और अंडरलाइन कुड भी हमारा इक्विटी जो है। तो अल्टीमेटली इफ आई नो हाउ द इक्विटी वर्क्स, तो डेरिवेटिव्स का भी वो जानना बहुत ही इजी है। तो व्हाई शुड आई अप्रोच डेरिवेटिव सो डिफरेंटली? तो डेरिवेटिव एनालिसिस बोलते हैं, डेरिवेटिव का स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो व्हाई इट इज क्रेविंग फॉर एक्सक्लूसिविटी? इट इज नॉट रियली सो स्पेशल, इट इज सच ए हाइप, ऐसा उसका मानना है। तो कोई आपको लगता है कि डेरिवेटिव सच ए हाइप है, उतना वैसा है नहीं है कि 1 घंटा या मे बी 1 डे जैसे स्पेंड करते हैं। इवन इन मोतीलाल ओसवाल वी डू हैव ए डेडिकेटेड इवेंट ऑन ऑप्शंस, वो पूरा 1 दिन का सेशन रहता है। तो उतना करने का क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल इट इज जस्ट ए डेरिवेटिव्स। एनीवन वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस? आपको लगता है इट इज जस्ट ए हाइप, doesn't really deserve the recognition that it has managed to receive? No, sir, uh, it has quite a few technical aspects to it, which are difficult to understand, basically, you know. Okay. Thank you, Manisha ji. Thanks for unmuting. See, let me give an analogy for you to make it relatable. मान लेते हैं कि we are sitting in one of the world's largest football stadiums, और मान लेते हैं हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही है। दिस इज एटलीस्ट लार्जेस्ट इन इंडिया विच कैन अकोमोडेट मोर देन 1 लाख ऑडियंस, है ना? तो वो इस स्टेडियम में हम बैठे हैं। इमेजिन आईपीएल का फाइनल मैच यहाँ शेड्यूल्ड है, तो ओवर 1,20,000 लोग आके बैठे हैं, स्टेडियम इज हाउसफुल। व्हाट डू वी डू? वी विल टेक द एवरेज height of the audience. We will take the average height of the audience. तो कैसे करेंगे? So we will take the फर्स्ट मेंबर का हाइट मेजर करेंगे, सेकंड मेंबर का हाइट मेजर करेंगे, we will take the total height and we will divide it by the total number present. So what do we get? We will get the total height of the audience, जो वहां इकट्ठे हुए हैं सबका टोटल हाइट मिल गया। लेट इट बी x, जो भी है। नाउ वी विल इनवाइट वर्ल्ड्स टॉलेस्ट गाय टू द स्टेडियम, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट गाय जो है उसको हम इनवाइट करेंगे, and we will recalculate the average. Will it change? चेंज होगा या नहीं होगा? Yeah, I hope I'm making. Should it be in Hindi or English? Please, can someone tell me? Am I talking more in Hindi or more in English? No, sir, you're perfect. I think they'll answer it in the chat box. We're getting the answers in the chat box. Okay. I Since think all are muted. Yeah, since all are muted. Okay. So I think parallelly, let me see the chat box as well. Yes. Otherwise, we'll have to unmute all of them. So I think they'll just answer in the chat box. Okay, no worries. Thank you so much. Okay, so after all, we have invited world's tallest guy, so average will change. But what is the degree of change? Very marginal, hardly noticeable. अगर हमारा average height was 170 centimeters, तो मे भी अभी हो सकता है 170 point change में हो सकता है, very insignificant change. Correct? Now this is cash market for you. This is what equity market is for you. The possibility of one extreme event will not change much impact on the overall average. Now, let us take the same scenario, same football stadium, same audience, everything remains the same. But let us not take the average height. We will take the average wealth now. कैसे करेंगे? मैं आपका वेल्थ लूंगा, आपका वेल्थ लूंगा, एक एक करके सबका वेल्थ टोटल करूंगा। Then we will take the total wealth of the stadium. We will divide it by the number present. What do we get? We will get the average wealth of the stadium. Let it be y, जो भी मिला। Now we will invite Elon Musk to the stadium. Elon Musk को जानते हैं ना, वर्ल्ड्स रिचेस्ट गाय। तो हमने इनवाइट किया। Then we will recalculate the average. Will average change now? चेंज होगा, करेक्ट? I think I can see you all are nodding in agreement. तो yes, चेंज हो रहा है। What is the degree of change now? छोटा चेंज है,
No, now the change is very noticeable, very substantial. Now, this is derivatives for you. The possibility of one extreme event will change your average drastically. ऐसा क्यों है? Why it happens? Because by nature, derivative is a leveraged product. Now, what is leveraged product? मेरा खुद का पैसा कम, मार्केट का पैसा ज्यादा. This is what we mean by when we say कि it is a leverage. तो इसका मतलब क्या है कि what otherwise would have been a very small profit because of leverage can get bigger. Going by the same logic, what would have been a very small loss because of this leverage will be magnified. So आपका ये छोटा प्रॉफिट जो है वो बड़ा हो सकता है and vice versa. Have you seen this movie, The Taking of Pelham 123? You must see this movie. The movie is all about a hostage drama. The protagonist of the movie, they hijack a moving metro train. Intention is not to kill the passengers. Intention is not even to keep hostages, passengers as a hostages and demand ransom from the government. वो भी नहीं था. Then why did they hijack? They hijacked because they wanted stock market to react to this news. अभी स्टॉक मार्केट ये न्यूज को देख के अगर कुछ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्शन आएगा? विल मार्केट गो अप? अच्छा, हाईजैक हुआ, लेट मार्केट गो अप. Obviously reaction will come negatively. This is precisely they wanted market to be. Why? Because they had apparently created a position in derivatives called as put option. Put option buy किए थे. And within couple of minutes, market came down and they made 307 millions profits. This is the power of derivatives. Now, having said that, let me ask a follow-up question. How many traders are able to use leverage to their advantage and make money? एनी आइडिया रिटेलर्स का क्या हाल है? अभी इतना मैंने ग्लोरीफाई किया स्टॉक मार्केट के बारे में, लिवरेज के बारे में. तो एनी आइडिया कि मार्केट में कैसा है? इज माय स्क्रीन रीडेबल टू यू? या. So this is what the data says. Nearly 90% or 9 out of 10 traders are making losses. The average loss accounted by a trader in derivative is more than 1,20,000. तो अगर आप ये स्लाइड देखेंगे तो वन पॉइंट इज वेरी लाउड एंड क्लियर. रिटेलर्स आर नॉट रियली मेकिंग मनी इन डेरिवेटिव्स. ऐसा क्यों है? व्हाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आर लूजिंग मनी? द आंसर उसका मैंने रीजंस आर मेनी, बट मैंने क्या किया है, मेजर 3 रीजंस को मैंने आइडेंटिफाई किया है. देन आई विल स्लोली लिंक, having understood why do we make losses in derivatives, then we will shift our gears and we will try focusing more on the derivative topic. So why do retailers lose money? One, there is a knowledge deficit. Now, what is knowledge deficit? They don't know what derivative is. Oversimplified version of derivatives. मतलब अभी क्या है, किसी को अगर आप पूछेंगे कि if market is bullish, मैं अगर मुझे ऑप्शंस में या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो क्या करूं? उसको लगता है कि just go and buy a call option. What strike price? You ask a follow-up question, what strike price? He'll say doesn't matter, you go and buy any strike price, you make money. Oversimplified version about derivatives. पता ही नहीं है ये डेरिवेटिव सेगमेंट होता क्या है. ये फ्रेंड ऑफ माइन यूजुअली कॉल्स मी जब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो ही यूजुअली कॉल्स मी. वन डे ही कॉल्ड मी, कार्तिक आर यू बिजी? मुझे लग रहा था कि ये क्यों कॉल कर रहा है, बिकॉज मार्केट वाज मेकिंग ऑल टाइम हाई. तो मैंने बोला कि यार, इज इट टू डिस्कस सम ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक्स, व्हाट टू बाय? वेरी सॉरी, आई एम वेरी बिजी. सिर्फ नहीं नहीं, आपको किसने बोला मुझे आपसे स्टॉक पिक लेना है? नो, आई ऑलरेडी हैव वन. इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. मेरे पास एक ऑलरेडी एक कच्चा मल्टी बैगर, एक बहुत जबरदस्त स्टॉक मिल गया है. आई नो इट इज गोइंग टू मेक मनी, इट्स गोइंग टू मेक हैंडसम रिटर्न, बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू फाइंड. मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे ऐप में, मुझे मिल नहीं रहा है. कैन यू हेल्प मी विद द ISIN? बोलते हैं ना ISIN, होप यू आर अवेयर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ISIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. जस्ट हेल्प मी विद दिस ISIN नंबर. मैं ढूंढ लेता हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है. तो मैंने बोला अच्छा, तो you got your stock, not able to find one, बस उतना ही है. ओके, आई कैन हेल्प यू, टेल मी व्हाट इज दैट स्टॉक. बोलता है स्टॉक का नाम है ऑप्शन.
ऑप्शन इज नॉट ए स्टॉक, ऑप्शन इज ए सेगमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये बंदे को ये भी नहीं पता है कि इट इज ए सेगमेंट एंड वो स्टॉक के जैसा वो ढूंढ रहा है, then for sure you can imagine वो क्या होगा. It doesn't really matter whether he comes with 5 lakh or 5 CR, it is going to be zero. Because ये उतना market is a place where there is no mercy. If you come with a half-baked knowledge, market will take you for granted. Market will definitely punish you very hard. So first reason why players lose money, because there is a knowledge deficit. Second is illusion of intelligence. Now, what is this illusion of intelligence? Let me tell a joke. Do you know Sheshadri Chari? If you don't know who he is, just go out and look at any commoner. That is Sheshadri Chari for you. A typical, average, uh, you know, uh, Indian who is absolute nobody. अगर वो सामने से पास भी हो गया तो you will not even notice. He is such an average guy. And he became a overnight sensation. क्यों? Because he made millions in stock market. रातों रात ये बंदे ने millions stock market में कमा लिया. That too in options. Now everybody wants to know how he could do it. What is his secret recipe to make money in stock market. तो सभी उसके पीछे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं. They want to, media is behind him. They want to get a glimpse of his trading style. इंटरव्यू लेना है. So this newspapers सब आ रहे हैं. And somehow one news journalist caught hold of him and said, "Well, Mr. Chari, you are a celebrity now. Till yesterday, nobody had any idea about you. So now they want to know your style. How could you make it? We want to learn. So can you just tell me your trading recipe?" He said, Swami said, "Yeah, if you want to know my trading style, if you want to know how I made money, then I will have to discuss about my dream. जो मेरा एक ड्रीम था, सपना था जो मैंने देखा, उसके बारे में मुझे बताना." सर, वेल चारी, वी हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड, बताइए क्या था. तो ये स्वामी चारी सेड कि, "वेल, अदर डे आई वाज इन माय डीप स्लीप. वन वेरी कैप्टिवेटिंग वॉइस told me, Chari, Ambani, 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 3 times. So I got the hint. The very next day, I went and I purchased Adani ka call option." The journalist said, "Well, Mr. Chari, hang on. You said Ambani, Ambani, Ambani 3 times. This is what you heard? And you are saying that very next day you went and purchased Adani ka options?" "Well, Adani is a very different entity. It is owned by Gautam Adani. Ambani owns Reliance. You are talking about a very different entity." The Chari said, "Oh, so what's the point? I still made money. Still made money." तो मार्केट में क्या है कि इट फेवर्स एक्सीडेंटल विनर्स. यू नो नथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट yet you can make money. If I buy, even though I don't know anything about market, I can still make money 50% of the time. I give a book to you, how to perform a open heart surgery. You read it for 30 days. And I give the state of art, technology to you and give a fully equipped, uh, you know, um, theater, operation theater. उसको अंदर भेजता हूँ. What is the probability that you will make a successful operation? Zero. I will give a book, how to play a flute in 100 days. You read it and you mesmerize your crowd with a decent concert. What is the probability? Once again, zero. But you know nothing about stock market and you still go and buy or you sell. What is the probability that you will make money? It is 50%. So this is the problem with our retailers, because first time out of luck he might make money, but we will confuse that luck as skill. So we are not able to differentiate what is luck, what is skill. So ये एक बहुत ही important है, because if I make a profit once, it would be luck. Second time, it would be luck. But if I want to make money consistently over a period of time, then it is not about luck. Maybe I have figured it out, some tricks of trade. तो यहाँ हमको ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कितना मेरा स्किल है, कितना मेरा लक है. वो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. And the last, obviously, they think option is a fair game. And let me tell you, with a sense of responsibility, option is not a fair game. What is a fair game? अगर हम दोनों एक टेबल टेनिस का मैच खेलते हैं, that's a fair game. How?
बिकॉज द स्कोर स्टार्ट जीरो. लव वाल से स्टार्ट होता है ना, आपका स्कोर जीरो, मेरा स्कोर जीरो, दैट्स हाउ वी स्टार्ट. बट व्हेन वी गेट इनटू द गेम ऑफ ऑप्शंस, इट इज सेलर इज ऑलरेडी ahead ऑफ यू बाय सेवरल पॉइंट्स. वो गेम स्टार्ट नहीं हुआ बट सेलर ने ऑलरेडी लीड ले चुका, एंड बायर इज सेइंग कि लेट मी गेट इन. So definitely it is advantageous to the option seller, not to the buyer. Whereas someone reading for the very first time, उनको लगता है कि ये fair game है. Because textbook क्या बोलता है? If you are a buyer of a option, profits are unlimited, losses are limited. कुछ ऐसा आपको textbook बताता है. But the real picture is different. तो ये ऐसा क्यों है? Why does it happen? मैं अभी उसको समझने के लिए let us slightly get into the technical side. तो डिराइवेटिव्स का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये बताता है, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप इट व्हाट इज डेरिवेटिव्स, दिस इज द क्लासिक डेफिनेशन दैट यू गेट. डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट इज अंडरलाइन. और अंडरलाइन हो सकता है स्टॉक, इंडेक्स, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, अलग अलग है. बट आई एम 100% श्योर इफ यू आर रीडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको कुछ समझ में नहीं आया. इट्स ओके. तो मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूं कि मान लेते हैं कि 1 लीटर मिल्क, इमेजिन कीजिएगा 1 लीटर मिल्क का प्राइस है लेट्स अज्यूम 70 रुपीज, एंड 1 लीटर कर्ड का प्राइस है मान लेते हैं 100 रुपीज. Imagine this is the prevailing price. Now tomorrow price of milk goes up from 70 rupees to 80 rupees. Just a hypothetical example. अगर ये price ऊपर जाता है 80 rupees, steep surge in the price of milk. Now you tell me, can price of curd remain at 100? Is it possible? Not possible, है ना? क्यों? Because यहाँ curd जो है it is a derivative. Now curd is a derivative and milk is the underlying. तो यहाँ कर्ड इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम इट इज अंडरलाइंग, दैट इज मिल्क. मिल्क क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कर्ड का प्राइस क्या होना है. सो कर्ड इज ए डेरिवेटिव, मिल्क इज द अंडरलाइंग. तो नाउ यू कम बैक टू दिस डेफिनेशन, आपको अभी समझ में आएगा. सी डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अदर. तो डेरिवेटिव्स मतलब वो दूसरे अंडरलाइंग से उसका वैल्यू लेता है. तो यहाँ curd is a derivative because curd is deriving its value from its underlying, that is milk. So what happens to milk will decide what is happening to milk will decide what will happen with curd. It is not the other way around. Okay. तो हमारा स्टॉक मार्केट में when we say derivatives we are talking about futures and options. यहाँ दो आते हैं, futures and options. अभी ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. क्यों? जैसे कर्ड उसका वैल्यू डिसाइड करता है, उसका वैल्यू गेन करता है मिल्क से, ठीक वैसे ही ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ये डिसाइड वो वैल्यू डिराइव करता है उसका अंडरलाइन से, दैट इज स्पॉट. और हमारा इक्विटी जो बोलते हैं, आई एम श्योर you might have had a session earlier, equity which is nothing but the ownership product. तो ये जो इक्विटी है ये डिसाइड करता है उसका फ्यूचर का प्राइस क्या होना है या ऑप्शन का प्राइस क्या होना है. सो आई हैव नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज ऑप्शंस, मैं वहां तक आया ही नहीं हूं. मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स क्या है, उसको डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं. just because it is deriving its value from it is underlying, that is spot market और इक्विटी मार्केट, हम उसे बोलते हैं डेरिवेटिव. so far so good, clear है? okay, fine. so this is what the definition says. okay, अभी इसका आपको और एग्जांपल चाहिए तो मे बी यू कैन कंसिडर क्रूड ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल. ये भी आपका वन मोर एग्जांपल है. जैसे मिल्क इज द अंडरलाइंग, कर्ड उसका डेरिवेटिव है, पनीर डेरिवेटिव है, बटर मिल्क डेरिवेटिव है. ठीक वैसे ही क्रूड ऑयल अगर अंडरलाइंग है तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल उसका डेरिवेटिव्स है. या मे बी इफ आई वांट वन मोर, टायर प्राइस एंड रबर अंडरलाइंग है, टायर इज द डेरिवेटिव. सो एक अंडरलाइंग होता है, दूसरा डेरिवेटिव. डेरिवेटिव उसका वैल्यू अंडरलाइंग से लेता है. सो इसका मतलब है डेरिवेटिव्स. ओके ओके.
मैं अभी आपको एक वन मोर एग्जांपल बताता हूँ. लेट्स अज्यूम दिस 500 रुपीज का नोट. दिस 500 रुपीज का नोट. ओके, this is 500 rupees का नोट. नाउ इफ आई आस्क यू टू टेक दिस 500 रुपीज का नोट एंड इसके बदले में आप मुझे 500 रुपीज का नोट देंगे. यू टेक दिस 500 रुपीज नोट एंड यू गिव 500 रुपीज का नोट. विल यू गिव इट टू मी? यू विल. नाउ इसको दे दूंगा एंड इफ आई डिमांड 10 100 रुपीज का नोट अगेंस्ट दिस, विल यू गिव? नो. तो आप अभी ये मान के चल रहे हैं इसका वैल्यू 500 ही है. यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट विलिंग टू पे 1 रुपी हायर देन 500. तो मैं देगा ऐसा क्यों है? इट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर. बट आप ये पीस ऑफ पेपर के अगेंस्ट 500 का दूसरा लेने के लिए रेडी है, या 100 का 5 देने के लिए रेडी है, बट नॉट 1 रुपी मोर. देन आई रियलाइज ओके, लेट मी डू वन थिंग. मैं एक काम करता हूँ. अब ऐसा ही एक एक ऐसा व्हाइट शीट ऑफ पेपर में मैं लिखता हूँ. जैसे वो उसमें था, उसमें क्या लिखा था? 500 लिखा था. देन इट हैड दिस वन नंबर था. नोट का एक नंबर था. एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा था, मैंने वो भी लिख लिया. और वेरी इंपॉर्टेंटली उसमें एक गांधी जी का पिक्चर है, मैंने वो भी लिख लिया. सो समहाउ मैंने ये बनाया. नाउ आई एम गिविंग इट टू यू. टेक दिस एंड गिव मी 500 रुपीज का नोट. विल यू गिव नाउ? नहीं. नाउ यू आर नॉटिंग इन डिसएग्रीमेंट. ऐसा क्यों है? ऐसा पार्शलिटी को क्यों कर रहे हैं? नाउ व्हेन आई एम गिविंग दिस यू आर रेडी टू पे. व्हेन आई एम गिविंग दिस यू आर नॉट रेडी टू पे. व्हाई? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? दिस करेंसी आपको लगता है वैल्यूएबल है. दिस इज नॉट एट ऑल वैल्यूएबल. बट इफ यू आस्क मी, बोथ आर पीस ऑफ पेपर. बट दिस पेपर piece of paper has value, but this piece of paper has no value. Why? Because this currency is deriving its value from this RBI governor का signature. I promise to pay, है ना? So even though it is a piece of paper, it is gaining its value because of RBI governor. Correct? So this is how the derivative is gaining its value, because it is gaining its value from something else. Now extend the same logic. अभी मैं आपको, आई एम assuming कि आपको डेरिवेटिव का एग्जांपल क्लियर हो रहा है. देयर इज वन डिफरेंशिएशन फैक्टर. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी कम बैक टू दिस. तो वही करेंसी का नोट के बाद मैं अभी आपको 5 रुपए का ये दिखा रहा हूँ, कॉइन. सो दिस लुक्स लाइक ए गोल्ड कॉइन. 5 रुपए का कॉइन है. वन सेम क्वेश्चन. आई एम गिविंग दिस 5 रुपी का कॉइन टू यू. इसके बदले में मुझे आप 1 रुपी का 5 कॉइन देंगे. यस, यू आर रेडी टू पे. इसके बदले में विल यू गिव दिस 500 रुपीज का नोट? नो. वंस अगेन आई एम एज्यूमिंग आप ये मान के चल रहे हैं कि दिस का वैल्यू, ये कॉइन का वैल्यू 5 रुपीज है. यू आर नॉट रेडी टू पे 1 रुपी हायर. Maybe you are applying the same logic because this piece of coin is gaining its value from the RBI governor. वही सब आप लॉजिक ला रहे हैं. Now hold your thought for a while. अभी मैं आपको ये बोलूं, ये जो कॉइन है, इट लुक्स लाइक ए गोल्ड कॉइन. मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया. आई टुक होम, आई मेल्टेड दिस कॉइन एंड आई फाउंड आउट दिस पीस ऑफ मेटल इज प्योर गोल्ड. ये आपको पता ही नहीं था. मेल्ट करने के बाद मुझे पता चला इट इज 100% प्योर गोल्ड है. Now if I come with that melted piece and if I give it to you, will you give 500 rupees note? Maybe you will give 500, you will give 5,000 as well, correct? Because now this value, the value of this metal is more than 500. It is maybe more than 5,000. It is more than 10,000 maybe. Why? Because it has a value of its own. अगर इसका खुद का वैल्यू है, then it is not a derivative. Please remember, derivatives का उसका खुद का वैल्यू कभी नहीं होता. इट हैज वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स अंडरलाइंग. अगर अंडरलाइंग नहीं है तो इसका वैल्यू भी नहीं है. अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसको मेल्ट करके मैं 5 रुपीज से ज्यादा वैल्यू पे अगर मैं बेच सकता हूं, देन इट कैन नॉट बी ए डेरिवेटिव. डेरिवेटिव्स कैन नॉट बी लार्जर देन द अंडरलाइंग. डेरिवेटिव कैन नॉट हैव ए वैल्यू ऑफ इट्स ओन. कल अगर रिलायंस एज ए एंटिटी ना रहा तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन कोई काम का नहीं है. रिलायंस का फ्यूचर का कोई वैल्यू नहीं है. So everything has to everything has to have a
लॉजिक, अगर अंडरलाइंग नहीं है तो डेरिवेटिव का कोई वैल्यू नहीं है. सो दिस इज हाउ इट गोस. ओके. ओके, नाउ लेट मी कम टू ऑप्शंस. अभी ये डेरिवेटिव्स का मतलब समझ में आया. नाउ यू नो कि डेरिवेटिव्स ऐसा क्यों बोलते हैं, व्हाई डू वी कॉल डेरिवेटिव एज डेरिवेटिव. एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप. So now let me come to options. Uh, because considering the time allotted, I have good enough time to cover options. Maybe if time permits, or if there is a one more request on a dedicated session on futures, I will cover it. I was told to cover a session on options, so I will skip the future part. I will directly come to options. So option वो क्या है? Of course, it is a derivative because it is gaining its value from our spot. तो इसलिए हम उसको derivatives बोलते हैं. But options है क्या? हाउ डू यू रिमेम्बर ऑप्शंस? जैसे अब रिलायंस रिलायंस इक्विटी क्या है? सरल भाषा में अगर मैं किसी नॉन फाइनेंस गाई को इक्विटी को बताना है, यू हैव नो आइडिया अबाउट स्टॉक मार्केट, यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट शेयर इज. अगर मैं उस बंदे को इक्विटी कैसे समझाऊंगा? मैं बोलूंगा मेरे अंकल को, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू टॉक टू माय अंकल and I tell him, uncle ji, why don't you go and invest in stock market? He will say, no, 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 stock market not for me, risky है. I said, at least try तो कर कीजिए. No, no, it is a gamble. He has all those, preconceived notions. Stock market is a gamble. I don't want to get into stock market. अगर मैं उसको अंकल को एक दूसरे टोनालिटी से बताता हूँ, ओके फॉरगेट अबाउट व्हाट आई सेड अंकल, एक काम कीजिएगा, विल यू बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू ए पार्टनरशिप विद मुकेश अंबानी? अगर मैं उस अंकल जी से ये बोलूंगा, would you be interested in getting into a partnership with Mukesh Ambani? What do you say? अच्छा, partnership with Mukesh Ambani? Is it possible? Should I come to Mumbai? कुछ ब्लेजर पहन के आऊं, कुछ पीपीटी तो चाहिए होगा. ऐसे रिलैक्स अंकल, you don't have to do anything, just go and buy Reliance का share. Because the moment you buy Reliance ka share, you are the owner of Reliance. Who is Mukesh Ambani? Even he is the owner of Reliance. So when you buy a share, you are nothing but a partner to each other. You are a partner to Mukesh Ambani. This is a very, if I say so, I am not lying. This is what the SEBI says. This is what the definition says. Because when you buy equity, you are the owner of that company. सरल भाषा में we are talking about the ownership. ठीक वैसे ही सरल भाषा में ऑप्शन क्या है? इफ आई बाय रिलायंस का कॉल ऑप्शन, आई एम आई द ओनर? नो, यू आर नॉट द ओनर. तो वो क्या है, वो अभी समझ लेते हैं सरल भाषा में ऑप्शंस को कैसे समझते हैं. सो लेट मी कम बैक टू दिस स्लाइड. Is my slide visible? No, right? Okay, just a second. Yeah. सी सबको ये पता है, ऑप्शन में दो है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है. कॉल ऑप्शन बुलिश, पुट ऑप्शन बेरिश. इतना बहुत सारे लोगों को पता है. बट मेरा पहले ये स्लाइड समझने से पहले फर्स्ट लेट अस मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑप्शंस. तो सरल भाषा में अगर आप उसका डेफिनेशन देखते हैं तो ऑप्शंस का मीनिंग क्या आता है? ऑप्शन का मतलब है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. बायर है, सेलर है, दोनों है. सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बायर, सेलर को नहीं, बायर को एक राइट मिलता है. सो व्हाट इज दैट राइट? ए राइट टू सेल और बाई, दोनों में से कोई भी हो सकता है. क्या? ए पर्टिकुलर एसेट एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर डेट. सरल भाषा में इसका मतलब ये है, दो एंटिटी है, बायर है, सेलर है. तो अगर मैं बाई कर रहा हूं तो इसका मतलब है, सी बायर मतलब क्या है? पैसा देना होता है उसे. सो आई पे 50 रुपीज, आई गेट दिस पेन. आई पे 50 रुपीज, आई बाई ए ऑप्शन. मतलब क्या है? मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक स्पेशल राइट. और ये स्पेशल राइट क्या देता है? ए स्पेशल राइट टू बाई और सेल क्या? ए पर्टिकुलर एसेट एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर डेट. ये ऑप्शन का मतलब है. ना इसको थोड़ा और बाइफोकेट करते हैं और ड्रिल डाउन करते हैं. मैंने बताया कि ऑप्शन में बायर को एक स्पेशल राइट मिलता है जो बाई भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशल राइट विच गिव्स अ राइट टू बाई, अगर बाई का राइट मैं परचेस कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन. ओके. अगर मैं से 50 रुपीज दिया, बदले में मुझे पेन मिला. पेन इज समथिंग दैट आई कैन राइट. तो आप क्या एज्यूम करेंगे?
आप एज्यूम करेंगे कार्तिक हैज परचेस्ड ए पेन, मे बी ही हैज समथिंग टू राइट. दिस इज योर सिंपल इंटरप्रिटेशन. सिमिलरली इफ आई बाय ए कॉल ऑप्शन, व्हाट वुड बी योर इंटरप्रिटेशन? आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, कार्तिक हैज पेड 50 रुपीज एंड ही हैज परचेस्ड ए कॉल ऑप्शन. दैट मीन्स ही वांट्स टू हैव ए राइट टू बाय. उसको कुछ बाई करना है. क्या है? ए पर्टिकुलर एसेट. पर्टिकुलर एसेट कुड बी निफ्टी, इट कुड बी रिलायंस, इट कुड बी भारती एयरटेल इन अवर स्टॉक मार्केट एट ए पर्टिकुलर प्राइस, वो जो भी दाम है या पर्टिकुलर डेट. तो ये होता है कॉल ऑप्शन. देन व्हाट इज पुट ऑप्शन? अगर वही मुझे पर्टिकुलर राइट चाहिए, एक स्पेशल राइट चाहिए टू सेल, अगर मैं राइट परचेज कर रहा हूं बाई करने के लिए तो कॉल ऑप्शन है. अगर मैं राइट परचेज कर रहा हूं सेल करने के लिए, वो है पुट ऑप्शन. बाकी सब रिमेन्स द सेम. पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर डेट. आई एम श्योर अभी भी बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी अभी तक आया नहीं है. डोंट वरी, बिकॉज ये डेफिनेशन फर्स्ट टाइम अप्रोच करेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन होता ही है. तो इसीलिए आई विल गिव एन वन एग्जांपल. ओके, पे अटेंशन टू दिस एग्जांपल. आई एम 100% श्योर आपको ये एग्जांपल के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा. ओके, लेट मी क्रिएट ए वेरी रिलेटेबल सिनेरियो. इमेजिन कीजिएगा कि आई वांट टू रिलोकेट. मैं अभी बैंगलोर में हूँ. आई वांट टू रिलोकेट टू मुंबई. मुंबई आना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू स्टे इन ए रेंटेड अपार्टमेंट. मेरा खुद का एक घर खरीदना है. वन स्मॉल अपार्टमेंट. आई डोंट हैव ए वेरी बिग बजट. एक छोटा अपार्टमेंट मुझे खरीदना है. तो वन डे संडे आई गो आउट सर्चिंग डिफरेंट अपार्टमेंट्स दैट आई कैन बाय. Apartments are available, but very expensive. 1.5 CR, 2 CR, 3 CR, बहुत ही एक्सपेंसिव. आई डोंट हैव सच ए हाई बजट. और जो मेरे बजट में था, so these are very old buildings, not in a good condition, so I was not very keen on buying. So one full day I have squandered. I did not find any apartment which is worth buying. तो निराश होके मैं अपने रूम वापस जा रहा था, तो आई कुड सी वन बोर्ड, हाउस फॉर सेल बोल के एक था. बाहर से तो अच्छा ही दिख रहा था वो अपार्टमेंट. होपिंग टू फाइंड द सेम एक्सपेंसिव प्राइस टैग, आई वेंट इनसाइड. देख लेते हैं एक घर क्यों देखना है. दिस हैपेंस टू बी माय लास्ट सर्च फॉर द डे. ऐसे एज्यूम करके गया कि यहाँ भी एक्सपेंसिव होगा. एंड टू माय सरप्राइज घर बहुत ही अच्छा था अंदर भी. एंड आई गेव वन प्रिलिमिनरी लुक एंड आई केम बैक एंड आई आस्क्ड द हाउस ओनर, सर आई थिंक घर आपने अच्छा मेंटेन किया है. Now let me ask the very basic question. At what price you want to sell? Now the house owner said, I want to sell this house for 25 lakhs. 25 lakhs. Certainly my budget is much higher than 25 lakhs. Will I say yes, I want to buy now? Yes, I have the temptation to say yes, but मैं अभी उतना जल्दी बोलूंगा नहीं, because मुझे पता लगाना है ये इतना कम में क्यों बेच रहा है. ये कुछ तो उसका मजबूरी हुआ होगा. Now what I do? आई सेड, सर आई थिंक मैंने वो मास्टर बेडरूम ठीक से चेक नहीं किया है, एक बार फिर से जाके देखूं क्या? सेड, सर बाय ऑल मींस जाके चेक कीजिएगा. नाउ आई वेयर दिस एक्स्ट्रा लेंस एंड आई स्कैन ईच एंड एवरी कॉर्नर मेकिंग श्योर कि नो फॉल्टी वर्क्स, ऑल पार्ट्स आर जेन्युइन. इस बार मैं इतना स्कैन करके देख रहा हूँ ईच एंड एवरी कॉर्नर को, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट इज देयर एनी लूप होल इन द हाउस. बट आई गिव ए वेरी केयरफुल लुक एंड आई कम बैक, no faulty work, all parts are genuine. And I come back and I ask the same very question, sir, are you sure you want to sell this house for 25 lakh? The house owner ने बोला, हाँ 25, that's the my final price, no bargaining. अंदर अंदर बोल रहा मुझे बार्गेन करना ही नहीं है. 25 is the best price. Now do I have a temptation to say yes? अभी है ना? तो नाउ प्लीज रिमेम्बर, फॉर ए ट्रेड टू टेक प्लेस देयर शुड बी ए कॉन्ट्रडिक्शन. अगर मार्केट में कंसेंसस है कभी ट्रेड नहीं बनेगा. अगर आपको रिलायंस खरीदना है, मुझे खरीदना है, इन सबको खरीदना है, सबको बाई ही करना है, तो सेल कौन करेगा? हाउ विल ट्रेड एवर टेक प्लेस? फॉर एवरी बाई ऑर्डर देयर शुड बी ए सेल ऑर्डर. अगर मुझे लगता है कि ये खरीदना है तो किसी को लगना चाहिए इसको बेचना है, तभी वो ट्रेड हो पाएगा. व्हाट इज दैट आई हैव इन माइंड? मेरे दिमाग में ये है कि मैंने एक दिन मुंबई में गुजारा है. I know the real estate of Mumbai right now. I have spent good amount of time searching a house. Apartments are expensive, super expensive. But for some reason, here is one apartment which is available cheap, 25 lakhs में.
गुड फॉर मी, मे बी हाउस ओनर को खुद पता नहीं है इसका वैल्यू कितना है, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, मैं तो बाई करना चाहता हूँ. Now what this house owner is thinking? Now house owner is thinking this guy has come from Bangalore. He doesn't know the Mumbai market. Mumbai has sanctioned one more metro and the metro line going to go straight in front of this house. अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स आ जाएंगे. वंस द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स इतना वाइब्रेट करेगा बिल्डिंग्स में, शायद क्रैक्स आ सकते हैं, दरार आ सकते हैं. इफ आई गेट rid ऑफ दिस अपार्टमेंट एटलीस्ट 25 lakhs में फिर भी बिकेगा. अगर वेट किया तो उसका वैल्यू 20 lakhs भी आ सकता है. दिस इज व्हाट हाउस ओनर इज थिंकिंग. सो फॉर वट एवर रीजन आई वॉज नॉट अवेयर. मैंने बोला हाउस ओनर को, सर 25 lakhs पे आप बेचना चाहते हैं तो ये काम कीजिएगा, यू डोंट हैव टू सर्च एनी मोर पार्टीज. फॉर 25 lakhs आई एम इंटरेस्टेड. ये बाहर जो बोर्ड लगाया है उसको प्लीज हटा दीजिएगा. आई एम गोइंग टू बाय, यू डोंट हैव टू सर्च एनी मोर पार्टीज. हाउस ओनर ने बोला वेरी गुड, फाइनल. मैंने एक बोला सर एक प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव फंड्स राइट नाउ. मेरे पास 25 lakhs अभी है नहीं. आई एम एक्सपेक्टिंग सम फंड्स दिस मंथ. तो एक काम करते हैं, आफ्टर ए मंथ आई विल कम टू यू, आई विल पे 25 lakhs एंड यू प्लीज ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट्स टू मी. इज दैट ओके? हाउस ओनर ने बोला ओके, नो प्रॉब्लम विद मी. And he offered a cup of coffee, and I was sipping a cup of coffee, and I was quite relaxed. Finally, I found a house. I was feeling very happy. Suddenly, I have become apprehensive. Why? Now I become apprehensive because house owner has agreed to sell this apartment at 25 lakhs. Have I paid 25 lakhs? No. When I am going to pay? After 1 month. Now, after 1 month, many things can happen. Now, what if this gentleman, he calls some of his friends and says, I found a party from Bangalore. He is going to buy my house for 25 lakhs. And what if they advise him, why are you selling your house so cheap? आपको पता नहीं है क्या आपका खुद का घर का वैल्यू क्या है? फॉर श्योर यू कैन सेल दिस हाउस फॉर 35 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs. And if he realizes the value of his house is more than 25 lakhs, after a month when I come, will he still sell it to me? He may say no, I don't want to sell. हाँ उस दिन तो बोला था 25 पे आपको मैं बेचूंगा, बट अभी नॉट इंटरेस्टेड, वेरी सॉरी, नहीं बेचना है, मैंने वैसे भी पैसा नहीं दिया ना. ही कैन से नो. तो मैंने क्या किया, द मोमेंट आई हैड दिस एप्रहेंशन, आई डोंट वांट दिस जेंटलमैन टू से नो एट द वेरी 11th आवर. तो मैंने क्या किया, कॉफी पीते वक्त ही इमीडिएटली मेरे जेब से एक 25,000 निकाला. ठीक है, आई टुक 25,000 नोट आउट एंड आई केप्ट ऑन द टेबल एंड सेड, सर प्लीज टेक दिस 25,000, ये आपका है, ये आप रखिएगा. मैं आऊंगा आफ्टर ए मंथ, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा डजेंट रियली मैटर, ये 25,000 फिर भी आपका ही है. बट when I come after a month, you have to you have to sell this house to me at 25. You have to sell, and I have got the right to buy. I have the right to buy. मैं buy करूंगा and I want to buy at 25. आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं आपको घर नहीं बेचूंगा. So in other words, I am creating an obligation. So this is nothing but I am creating a call option for myself. Now you see, come back to this definition. Now you will be able to, relate. See, I am creating a perfect call option. It's a contract that gives the buyer the right. मैं buyer हूँ, मैं 25,000 टेबल पे रखा एंड बदले में मुझे क्या मिला? What did I purchase? I purchased a special right to buy. Buy what? A particular asset. In this case, apartment at a particular price, 25 lakhs at a particular date after 1 month. So in other words, I created a perfect call option. So far so good, समझ में आ रहा है ना? So मैं अभी खुद के लिए एक कॉल ऑप्शन क्रिएट किया. अभी क्या होगा? Now let's assume 25 lakhs 25,000 मैंने पे किया एंड ओनर को अभी ऑब्लिगेशन है, अगर मैं आऊंगा आफ्टर ए मंथ ही हैज टू सेल दिस हाउस फॉर 25 lakhs. नाउ आई विल डिसाइड, मुझे जाना है नहीं जाना है मैं अभी डिसाइड करूंगा, एक मंथ में मुझे डिसाइड करना है. तो लेट्स अज्यूम क्या है, लेट्स अज्यूम व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. आफ्टर ए मंथ ही इज राइट. इमेजिन कीजिएगा मुझे ये मेट्रो के बारे में कुछ पता नहीं था,
When I went after a month, I couldn't really recognize the place. The place was beyond recognition. बड़े बड़े अर्थ मूवर्स आए हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, उतना धूल मिट्टी हर जगह, नॉइस, इट बिल्डिंग भी क्रैक आ चुके थे. ओके, बिफोर दैट, anyone finding it difficult to understand this terminologies? Maybe chat box पे कोई लिख सकता है. Am I making it in a language that you understand, or do you want me to simplify further? लैंग्वेज में हो या एग्जाम्पल में, या ओके, तो आई एम, चलिए, so let me continue with the same pace. तो now I have received this call option. अभी मुझे डिसाइड करना है कि आफ्टर ए मंथ व्हाट आई शुड डू. शुड आई गो टू दिस हाउस ओनर और नॉट? ओके, तो इमेजिन करते हैं कि अभी इस घर का वैल्यू जो है, अभी ये उसका घर का वैल्यू जो है वो हो गया है से 35 lakhs. The value of this house is 35 lakhs. Why? Because government has cancelled that metro project, and definitely those earth movers वो सब अभी आएंगे नहीं, and घर का वैल्यू बढ़ गया. 35 lakhs अभी घर का वैल्यू है for sure. Now what will happen to me? I can go. Should I go to his house? I will definitely go, because now I have this special right to buy this house. At what price? 25 lakhs. And what is the market outside? If the intention is to make a money, then don't you think I can go and purchase at 25 lakhs and sell it at the market price at 35 lakhs? What is my profit? 10 lakh. Now out of 10 lakhs, deduct that 25,000 which I kept on the table. Remember, while having a cup of coffee, मैंने उसके टेबल पे 25,000 रखा था. मैंने क्या बोला? मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, ये 25,000 आपका है. So in other words, this is my cost. In other words, this is this 25,000 which gave me this special right. एक कॉल ऑप्शन का कॉस्ट है, उसको निकाल देता हूं. So मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 9,75,000. करेक्ट है ना? So the value of house goes up and I am making money. कितना पैसा हुआ? 9,75,000. इमेजिन कीजिएगा घर का वैल्यू 55 lakhs हुआ तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? I have a right to purchase at what price? 25 lakhs. And if I want, I can sell it at the market price at 55 lakhs. तो मेरा प्रॉफिट हो गया 20 lakhs. उसमें से खर्चा निकाल दो. 25,000 is the cost. तो my profit is 19.75. So this is how the call option behaves. If the underlying has strength, if the underlying is gaining its value, I'm making money. And best case scenario, my profit could be unlimited. The value of this apartment goes to 55 lakhs, 75 lakhs, 1 CR, 1.5 CR. As underlying gains its value, I'll continue to make money. So call option is bullish. जितना underlying में दम है उतना मेरा profit होता जाएगा. Making sense? Okay. Now let us consider one more scenario. One more scenario where after a month, value of this apartment has reduced to 20 lakhs. क्यों? Because metro का construction चालू हुआ था. Buildings में already दरार आ चुके थे. And in that condition, nobody has any takers. The value of this house has come down. Now you tell me, what is my loss? Chat box में कोई लिख सकता है? What is going to be my loss? Value of the apartment has reduced to 20 lakhs. तो मेरा लॉस कितना है? 5,25,000. 9 lakh? 5,25,000. 5,25,000. Okay, good. Some any other answer? 5,25,000 looks like is the mathematical answer, but my loss is not 5,25,000. My loss is only 25,000. Not 5,25,000, only 25,000. क्यों? Because मैं मेरा शक्ल नहीं दिखाऊंगा. I will never ever go and exercise my right. मैं अगर जाता हूं, if I use my call option, then yes, I have to buy at 25,000 and then I have to sell it at 20 lakhs. तो मेरा लॉस हो गया 5 लाख प्लस वो 25,000 जो मैंने टेबल पे रखा था. तो 5 lakh plus 25,000, 5,25,000. This if I exercise my call option. अगर मैं कॉल ऑप्शन को यूज करता हूं तो 5,25,000. अगर मैं यूज नहीं करता हूं तो
तो ये जो 25,000 दिया, दैट हैज गॉन इन वेन, है ना? Just because I have this right, I will not use it. Please remember. So this is where the one magic line appears. Call option gives the right, but not an obligation. Please remember. मेरे पास right है, but वो right को use करने का obligation बिल्कुल नहीं है. प्रॉफिट आया, मेरा हक का है, मैं ले लूंगा, अपने हक से ले लूंगा. आई हैव ए राइट. जैसे वो प्रीवियस सिनेरियो में था, अपार्टमेंट का वैल्यू 55 lakhs है, तो वो मैं क्या बोलूंगा? मैं परचेस करूंगा 25 lakhs पे, और सेल करूंगा 55 lakhs पे. नाउ हाउस ओनर कैन नॉट क्राई, अरे हाउ कैन आई सेल दिस एट 25 lakhs, अपार्ट मेरा वैल्यू ऑफ द हाउस इज 55. नहीं, देयर ही हैज द ऑब्लिगेशन. मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट है, मेरा हक का प्रॉफिट है, तो मैं ले लूंगा. नाउ इन दिस केस मेरे अगेंस्ट में जा रहा है. इफ आई यूज दिस राइट, इट इज गोइंग टू मेक ए लॉस. अगर यहाँ लॉस आ रहा है बाई यूजिंग दिस राइट, तो मैं राइट को ना बोल दूंगा. और इज इट ओके, इज इट लीगल? वो पुलिस कंप्लेंट किया तो नहीं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन. प्रॉफिट आया तो ले लूंगा, लॉस आया तो ना करूंगा. तो इन दैट केस, वॉट एवर द कॉस्ट दैट आई हैव पेड टू परचेज दिस कॉल ऑप्शन, दैट इज माई ओनली लॉस. एबल टू गेट इट? So now you tell me, अगर वैल्यू ऑफ हाउस रिड्यूसेस टू 15 lakhs, तो मेरा लॉस कितना होगा? चैट बॉक्स पे लिखिएगा. अगर मेरा घर का वैल्यू अगर 15 lakhs हुआ, वेरी गुड. सब बैक टू बैक आंसर्स आ रहे हैं 25,000. वेरी ग्लैड. बैक टू बैक आंसर आ रहे हैं 25. सो आई एम ग्लैड सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉल ऑप्शन. Because the value of your underlying is going down, you are not a party to unlimited loss. You have a limited loss of 25,000. Profit आया, the profit is unlimited. Only yes, लिली जी ने बोला कि you are whatever the token, or in other words we say it as option premium. वो जो प्रीमियम आपने पे किया, that is your only loss. तो इसको जरा सरल भाषा में अगर मैं आपको लॉजिक वो बिठाऊं, तो इट इज लाइक हेल्थ इंश्योरेंस. सी, जब हम ये एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, वट एवर द 9,000 15,000 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट आई हैव पेड, तो जब वो साल हो गया एंड साल का प्रीमियम मैंने भर के रखा, एंड नेक्स्ट ईयर आई हैव टू रिन्यू इट एंड आई हैव टू पे, तो डू यू गेट दिस क्रेजी थॉट कि अरे यार, ये तो साल का एनुअल प्रीमियम तो पे कर दिया मैंने, बट आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, एक बार भी हॉस्पिटल जाना नहीं हुआ, पैसा वसूल होना है, तो लेट मी डेलिबरेटली ईट समथिंग एंड लेट मी एटलीस्ट हैव ए टाइफॉइड. ऐसा थॉट्स आते हैं क्या? नहीं ना. Because just because you have a health insurance, you don't want to deliberately get yourself ill and go to hospital. ठीक वैसे ही यहाँ भी आपके पास कॉल ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज करेंगे. यू विल यूज इट ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल. अगर नहीं है, तो आप रुथलेसली मना कर देंगे. योर ओनली लॉस इज कॉस्ट. क्लियर? वन फाइनल आंसर क्वेश्चन. अगर बिल्डिंग इतना ब्रेक हुआ और कोलैप्स होके पूरा का पूरा डेमोलिश हो गया, व्हाट इज माई लॉस? 25,000. दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉल ऑप्शन. ओके, ये हो गया आपका कॉल ऑप्शन. नाउ अभी यही आप ऑप्शंस में, सो व्हाट एवर एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड है ना, सेम टू सेम आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारा रियल एग्जाम्पल के लिए. अपार्टमेंट की जगह आपका रिलायंस कॉल ऑप्शन आ सकता है, निफ्टी आ सकता है, बैंक निफ्टी आ सकता है. एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. यहाँ मैंने अपार्टमेंट बोला, वहां आपका निफ्टी होगा. यहाँ मैंने 25,000 बोला, वहां हमारा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं. सो प्लीज रिमेंबर, देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस. ये जो है ना, 25,000 बोला, उसको हमारे ऑप्शंस में टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. और जो 25,000 बोला, जो टोकन जैसा आपको लगा सबको, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम. व्हाट डू वी कॉल? प्रीमियम. द अमाउंट दैट वी पे, वी कॉल इट एज प्रीमियम. एंड यहाँ द टाइम इज यूजुअली एक्सपायरी. लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो होता है, वो हमारा एक्सपायरी माना जाता है. Sir, what's the difference between strike and premium? हाँ, वो स्ट्राइक क्या है कि मैंने बताया ना कि यू आर, व्हेन यू बाय ए कॉल ऑप्शन, यू हैव द राइट टू बाय. उसके बाद एट व्हाट प्राइस आई हैव ए राइट टू बाय निफ्टी, और आई हैव ए राइट टू बाय रिलायंस एट व्हाट प्राइस. ये व्हाट प्राइस का आंसर देता है स्ट्राइक प्राइस. जैसे हमारे अपार्टमेंट के एग्जांपल में, आई वांटेड टू बाय द अपार्टमेंट एट व्हाट प्राइस, तो हमने मान के चला 25 lakhs. सो स्ट्राइक प्राइस हमारा 25 lakhs हो गया.
ठीक वैसे ही अगर आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेते हैं तो वो स्ट्राइक प्राइस बताता है कि आपका राइट क्या है, कौन सा रेट पे खरीदने का है, वो स्ट्राइक प्राइस है। यू आर फ्री टू चूज, आपका अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। किसी को कॉस्टली खरीदना है, किसी को कम कॉस्टली खरीदना है, किसी को सेम मार्केट में खरीदना है। इट इज लाइक चॉइस। जैसे मार्केट जाते हैं तो किसी का किसी को एक्सपेंसिव वर्जन चाहिए, किसी को चीपर वर्जन चाहिए। गाड़ी का भी आता है ना, बेस वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है, टॉप। तो ठीक वैसे ही यू कैन चूज योर ओन स्ट्राइक प्राइस। आई वांट टू बाय निफ्टी एट व्हाट प्राइस, लुक एट द स्ट्राइक प्राइस, दैट्स द राइट दैट यू have. Premium, once again I repeat, premium is the amount that you pay to purchase that option. प्रीमियम जो है, जो आप पे करते हैं, वो आपका कॉस्ट है। दैट्स द अमाउंट दैट यू पे सो दैट यू गेट ए राइट। नाउ आता है राइट टू बाई व्हाट। वो जो अंडरलाइंग है, इट कुड बी निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, वो जो अंडरलाइंग है वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा अंडरलाइंग और व्हाट कॉन्ट्रैक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। देन कम्स, अच्छा राइट तो मिल गया, राइट कॉल ऑप्शन है तो राइट टू बाय। उसके बाद का फॉलोअप क्वेश्चन आता है, हाँ राइट टू बाय एट व्हाट प्राइस, क्या का दाम में, वो स्ट्राइक प्राइस। व्हेन, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारा एक्सपायरी पे ही है। अगर टाइम परमिट्स आई विल कम टू दैट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शंस, बट हमारे स्टॉक मार्केट में सभी यूरोपियन ऑप्शन है। दैट मीन्स यहाँ अलग अलग एक्सपायरी होता नहीं है, एक ही एक्सपायरी, वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है। तो वो टाइम पे वो ये जो राइट है काम का है या नहीं है वो डिसाइड होता है एक्सचेंज लेवल पे। इज समवन गोइंग टू यूज दैट राइट और नॉट, वो डिसाइड होगा एक्सपायरी के दिन। तो विच इज यूजुअली मंथली, हमारे पास मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू वांट टू बाय। जून मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जुलाई मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट कॉल ऑप्शन। सो फar so good. Okay. Yes, sir. Sir, can you please repeat that statement that you made? Call option you will use then only when there is a profit, right? Call option is a contract that you buy when you are expecting market to go up. Now, for example, if I am buying, so in this case, अभी apartment का case में, if apartment is something which is tradable in our stock market, then what is my view? I am bullish on apartment. I am assuming the apartment value will go to 25 lakh and above. Because if the apartment value is going to be any lesser than 25 lakhs, then whatever 25,000 I have paid, it is going to be in vain. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो अंडरलाइन जो मैंने चूज किया उसमें एक स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का। 30 लाख बनेगा, 35 लाख बनेगा, 40 लाख बनेगा। जितना हाई हो जाता है उतना मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा। क्यों? बिकॉज मेरा इंटेंशन है टू बाई चीप एंड सेल एक्सपेंसिव। नाउ हाउ कैन आई एंश्योर दैट आई एम बाइंग चीप? Thanks to this call option, because it gives a very pre-decided level for me to get in. Now in this case 25 lakhs, when I say I have a right to buy this apartment at 25 lakhs, तो मैं मान के चल रहा हूं कि बाहर का प्राइस 25 के ऊपर है। इन अदर वर्ड्स आई एम एक्सपेक्टिंग अपार्टमेंट टू बी बुलिश। क्लियर है ना? तो It ये means we assume, na? It means we assume the price. Price will go up. It's assumption. yes, it is an assumption, it is just an assumption. There is no certainty in market, just a Okay. hope. Can you please explain it with your software, how to buy call option? With the software, in fact, I don't have a application right now in front of me. Next class we can go for this. Maybe I think that should be a one more session where whatever we have discussed now, we should be able to see it in the different strike price. I can maybe someone can go through our application. There is something called as Orion Light, where you can see the desktop version, or maybe you can also see how to place these orders using your Motilal Oswal trading app. Yeah. Sir, can you Because repeat then the name? it will be very clear for us. Sorry? Then it will be very clear for us. We can practically Yes, use yes. it. Yeah. Correct. Sir, can you repeat the name? The Rise, right? The Rise, that is the app. We have this that is yes. We have one Rise app. Then we have this desktop version called as Orion Light.
So we do have a team who are into this, product trainings. So maybe I can ask Swamini to arrange one exclusive session for you to get familiar with these trading apps and how to Yeah. find, how to select. Yes, that will be very Yeah, helpful. yeah, definitely, definitely. So now, now as you have already gone through the contents or the theoretical part, it is very easy for you to visualize, apply the theory into practice. Whatever we are discussing now, the strike price, premium, everything you should be able to see it there. सर वहाँ पे परसेंटेज भी होता है ना, द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, द माइनस प्लस कुछ नीचे परसेंटेज आता है रेट के नीचे, हाँ, वो क्या करेक्ट है। होता है सर? सी अभी वो तो क्या है कि आपका मार्केट का ट्रेंड, मतलब जैसे जैसे ट्रेड बदलता है, प्राइस मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो उसका प्रीमियम रियल टाइम में फ्लक्चुएशन होता है। जैसे हमारा मार्केट क्रिकेट का स्कोर जो है, विद बॉल सर टू बॉल स्कोर। ना ना, यू गो विथ आवर एग्जांपल इटसेल्फ, दैट विल बी इजी फॉर अस। वो कौन सा? 25 लाख, जो 25 लाख का अपना एग्जांपल है ना, आप हाँ, उसी में समझाइए, क्रिकेट में मत जाइए। ओके। तो अभी अभी ये लेट्स अज्यूम, इमेजिन कीजिएगा कि अगर एक मंथ में मुझे डिसाइड करना है मैं वो जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। बट जैसे जैसे मुझे वो क्लैरिटी आता जाएगा कि हाँ, ये अभी अपार्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है 25 लाख से 25.5 या 27 पॉइंट। अभी मुझे मेरा फ्रेंड बताता है कि अरे आप वो जगह पे ले रहे हैं, वो तो बढ़िया जगह है, तो फॉर श्योर वहाँ एक और सॉफ्टवेयर कंपनी आने का चांसेस है। तो व्हेन आई फाइंड दिस सेटिस्फैक्टरी और वेरी पॉजिटिव न्यूज, तो क्या लग सकता है आपको? ये अपार्टमेंट का वैल्यू ऊपर जाने का चांसेस है या नीचे जाने का चांसेस है? ऊपर जाने का। तब ये जो 25,000 है, जो मैंने टेबल पे रखा था, लेट्स अज्यूम प्रीमियम, तो वो ट्रेडेबल वैल्यू जो है वो आपका, अगर ये मार्केट में अगर वो 25,000 अगर वो रियल टाइम में फ्लक्चुएट होता है, तो ये 25,000 का प्राइस जो है वो 30,000 आ चुका होगा या 32 जा चुका होगा। वाई? नाउ इट इज मूविंग इन द फेवरेबल डायरेक्शन, है ना? तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे ये कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। अगर इमेजिन कीजिएगा, एक बार मैंने वो कॉल ऑप्शन ले लिया, उसका तब जब मैंने परचेस किया वो 25,000 था। तब उसके बाद इमेजिन कीजिएगा कि वहाँ एक एयरपोर्ट था नजदीक में, वो एयरपोर्ट दूर चला गया, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी था, वो सब ने उनका हेड ऑफिस बदल दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, वो जो लोकेलिटी जो रीजन के लिए पॉपुलर हुआ था, नाउ द चार्म इज गोइंग अवे। तो उसका रियल एस्टेट वैल्यू कम हो रहा है। तो अभी क्या होगा, वो जो 25,000 था, शायद अभी 20,000 आ चुका होगा, 18,000 आ चुका होगा। जैसे जैसे उसका सही अगर डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मुझे चाहिए था वैसे जा रहा है, तो उसका प्रीमियम ऊपर जाएगा। इफ इट इज गोइंग अदरवाइज, उसका प्रीमियम डिप होता जाएगा। ओके, अल्टीमेटली मैं अभी वही लॉजिक बता रहा हूँ, अल्टीमेटली ये ऊपर या नीचे कैसे डिसाइड करेगा? इट इज बेस्ड ऑन दी अंडरलाइन। अगर उसका ये जो बेस है, जैसे मैं हमने बताया था ना कि कर्ड वैल्यू डिसाइड, कर्ड उसका खुद का वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वो उसका वैल्यू डिसाइड करता है मिल्क को मिमिक करके, मिल्क का वैल्यू को डिसाइड देख के। ठीक वैसे ही अगर ये ऑप्शन है, उसका ऑप्शन वो प्राइस ऊपर नीचे कौन डिसाइड करेगा? उसका अंडरलाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस, रिलायंस विल डिसाइड, रिलायंस ऑन फ्यूचर विल डिसाइड व्हाट विल बी द प्रीमियम। ठीक वैसे ही यहां भी हमारा अंडरलाइन डिसाइड करता है कि उसका डेरिवेटिव्स का वैल्यू क्या है। क्लियर है ना? ओके। ये कॉल ऑप्शन है, एक बार देख लीजिए। कॉल ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द बायर द राइट टू बाय ए पर्टिकुलर एसेट एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर डेट। अगर ये कॉल ऑप्शन किसी को राइट देता है बाई करने का, तो पुट ऑप्शन है ये राइट देता है सेल करने का। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज दिस पुट ऑप्शन। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अगर आप देखेंगे ये कॉल का डेफिनेशन और पुट का डेफिनेशन सामने से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो एवरीथिंग इज सेम। एक ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, यहां जो कॉल बाई करेगा उसको एक मिलता है राइट टू बाय। ये जो बायर है, बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन गेट्स द राइट टू बाय। सेल, ये पुट ऑप्शन जो बाई करता है उसको मिलता है क्या है? राइट टू सेल। ओके, कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय, पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल।
बाकी सब रिमेन्स द सेम, ए पर्टिकुलर एसेट एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर डेट. नाउ लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल. अपार्टमेंट के एग्जांपल अगर आपके दिमाग में है तो यू प्लीज सॉलिडिफाई दैट एग्जांपल इन योर माइंड, because whatever example, whatever scenarios where what we have created is as relatable to any other asset class as our apartment. There is no confusion. एक बार ये एग्जांपल आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो आप जब ट्रेडिंग ऐप नेक्स्ट फॉलोअप सेशन में अगर ट्रेडिंग के ऊपर ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐप के ऊपर आएंगे तो भी आपका कैलकुलेशन उतना ही बराबर बैठेगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी कंफ्यूजिंग. ओके, सो नाउ लेट मी कम टू पुट ऑप्शन. Put option gives the right to sell. Once again, let me create a scenario. Okay. Imagine कीजिएगा, I have a car. I have a Mercedes Benz car and I want to sell it. तो मैंने अपना फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे क्लास स्टूडेंट स्कूल कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो एवरी ग्रुप में मैंने पिक्चर्स डाल दिया. दिस मर्सिडीज बेंज फॉर सेल, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन गेट इन टच. तो एक मेरा फ्रेंड था, वो सीधा घर आया. ही सेड, कार्तिक, इज इट ट्रू दैट यू वांट टू सेल योर कार? मैंने बोला हाँ, सेल करना चाहिए. तो एट व्हाट प्राइस? मैंने बोला आई वांट टू सेल दिस एट 25 lakhs. 25 lakhs. For 25 lakhs, you don't have to find any parties. I want to buy your car. My friend told, I want to buy your car for 25 lakhs. I was pleasantly surprised. He didn't even bargain. मैंने 25 बोल दिया, उसने immediately हाँ बोल दिया. Now once again coming back to that, contradictory logic. My logic is very clear. Car is a depreciating asset. Let me get rid of this car. Let me see. Let me upgrade my car. ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ. But my friend is thinking, maybe he is thinking, the car that Karthik has is a limited edition car. Very soon, company is going to stop manufacturing these cars. So the existing units will be sold at the appreciated price. So 25 for this car is a good price. So let me buy. ऐसा वो मान के चल रहा है. Whatever, whatever it is, I was very happy. मैंने बोला कि very good यार. He said कि आप ये काम कीजिएगा, अभी now you stop posting those images in any WhatsApp group. For 25 lakhs, I am interested. एक काम कीजिएगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है. ओके, मेरे पास अभी पैसा नहीं है. आई एम एक्सपेक्टिंग सम फंड्स इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, प्लस मेरा सैलरी भी आने वाला है. तो ये एक काम कीजिएगा, आफ्टर 1 month यू कम टू माई हाउस, गिव द कार कीज, टेक 25 lakhs फ्रॉम मी. इज दैट ओके? मैंने बोला हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. So we have had some talk and we both are happy and having a cup of tea, and suddenly now I am apprehensive again. क्यों? अभी ये मेरे फ्रेंड ने very readily agreed to purchase my car at 25 lakhs. Didn't even bargain. But उसने 25 लाख मुझे दिया क्या? नहीं दिया. कब देने वाला है? After 1 month. Now in this 1 month, lot of things can happen. And one predictable thing is he can take his mobile and call his random friends. I am going to purchase Karthik's Mercedes Benz for 25 lakhs. He may say so. And what if they advise, अरे why are you buying his car? You know Karthik is such a ruthless driver. पता नहीं कार को कहाँ कहाँ उसने ठोका होगा. The intention is to buy a used car. Why don't you come to the seconds market? You can buy similar model at a lesser price. Maybe आपको 23 lakhs में मिल जाएगा. If you are lucky, 20 lakhs में भी. If you ask us, 25 for his used car is certainly महंगा लग रहा है. बाकी आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से 25 lakhs महंगा है. And if they say so, do you think this gentleman will still buy it from me? After a month, very promptly, I may go to his house to deposit the car keys. But this friend can say कि very sorry यार, आप आए हैं तो have one more cup of coffee, but please leave. I'm not going to purchase your car. वो बोल सकता है. तो I don't want this guy to say no. Once again, तो मैंने क्या किया? The moment I had this apprehension, मैंने फिर से मेरे जेब से 25,000 निकाला. I kept 25,000 on the table and said, my dear friend, take this 25,000. ये आपका है, आप ले लीजिए. मैं आऊंगा आफ्टर 1 month.
I'll come and leave the car keys. मैं आऊंगा नहीं आऊंगा doesn't really matter. ये 25,000 फिर भी आपका ही है. But when I come after a month, you have to purchase. You are obligated to purchase because I have got the right to sell. I have got the right to sell. Please understand. पहले का केस में भी 25,000 देने वाला मैं था. अभी भी 25,000 पे करने वाला मैं हूं. इन अदर वर्ड्स, बोथ द केसेस में परचेज करने वाला, ऑप्शन परचेज करने वाला मैं था. प्रीवियस केस में I paid 25,000 and I purchased right to buy apartment. In other words, I purchased call option. Now I am paying 25,000 to purchase a right to sell. I am purchasing a right to sell. Sell what? A particular asset, Mercedes Benz, at a particular price, 25 lakhs, at a particular time after 1 month. In other words, I created a perfect put option. So far, so good? Yeah. So, अभी मैंने put option purchase किया. That means I have a right to sell a particular asset, Mercedes Benz, at a particular price, 25 lakhs, particular date. That means after 1 month. अभी मैं decide करूंगा 1 month में मुझे क्या करना है. I will decide. अभी तक मेरा कार मेरे पास ही है. I will decide. तो इमेजिन कीजिएगा कि एक सिनेरियो, कंपनी स्टिल मैन्युफैक्चरिंग इट. कंपनी अभी भी ओल्ड मॉडल, मतलब दे हैव नॉट स्टॉप दिस कार एंड द वैल्यू ऑफ दिस कार हैज रिड्यूस टू से 22 lakhs. अभी सेकेंड्स मार्केट में अगर आप चेक करेंगे तो फॉर श्योर मेरा कार का वैल्यू 22 lakhs ही है. नाउ यू टेल मी, शुड आई गो टू माय फ्रेंड? यस, निधि जी इज सेइंग कि आई शुड गो. एनीवन एल्स? यस, निशा जी भी बोल रहे हैं कि जाना चाहिए. Yes, no prizes for guessing that. Definitely I will go. Why? Because if I go, I have a special right to sell this car at what price? 25 lakhs. Now I can sell it at 25 lakh and I can buy back immediately at 22 lakhs. बाहर का प्राइस 22 है ना, तो सेल एट 25, बाय बैक एट 22, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख. So my profit is 3 lakh, but the 3 lakh I will not write it as net profit. This is my gross profit. इसमें से खर्चा निकाल देंगे. खर्चा क्या था? Once again the 25,000 which I kept on the table. So deduct that 25,000. So my net profit is 2,75,000. So please understand, apartment का value जब ऊपर जा रहा था, I was making money. So now the value of car is going down and I am making money. See? So put option is bearish. जितना नीचे जाता है उतना मेरा प्रॉफिट बनेगा. इमेजिन कार का वैल्यू हाइपोथेटिकली एज्यूम करेंगे 15 lakhs हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? आई हैव ए राइट टू सेल, बिकॉज अगर ये मेरे पास ये पुट ऑप्शन नहीं होता, अगर मेरे पास ये राइट नहीं होता, अगर सच में मुझे कार को बेचना है, तो आई वुड हैव गॉन टू द सेकंड्स मार्केट एंड सोल्ड एट 15 lakhs. बट थैंक्स टू माय पुट ऑप्शन I can sell this car at 25 lakhs at a inflated price and buy back at 15 lakhs. तो मेरा प्रॉफिट हो गया 10 लाख. और इसमें से खर्चा जो 25,000 मेरा प्रीमियम है, उसको खर्चा निकाल देंगे. सो माय नेट प्रॉफिट इज 9.75. सो जितना बेरिश है उतना मेरा प्रॉफिट है ना. सो नाउ इमेजिन करते हैं वन मोर सिनेरियो. ये तो हमारा बेरिश सिनेरियो हो गया. वैल्यू ऑफ द कार इज गोइंग डाउन एंड आई एम मेकिंग मनी. नाउ इमेजिन I was driving my car somewhere near my town. One gentleman stopped my car. No, it was not clear who it was. It was not a traffic police. So I applied brakes, rolled down the glass to see who it was. It was none other than superstar Rajni. Rajnikant stopped my car. You know Rajni? At least in South, he is a demigod. He has a cult status. So superstar Rajni stopped my car. I said, "Sir, you here?" He said, "Yes, I am here working with Shankar. I'm already." Acha, Amita ji saying, I think she is from Chennai, so maybe she is able to, she'll be able to maybe vouch for what I'm saying. So Rajni, I said, "Sir, you here in my city?" He said, "Yes, I am here because I am working with Shankar. I am already late to the shooting spot. It's already late. My car has broken down. So is it possible for you to drop me? शूटिंग स्पॉट तक मुझे लिफ्ट दे देंगे क्या?"
तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोला कि इट्स एन ऑनर, आई डेयर नॉट टू से नो टू रजनी सर, आई सेड सर प्लीज इट्स एन ऑनर, प्लीज कम. तो आई आस्क रजनी टू गेट इन, तो कार को अंदर बिठाऊंगा एंड आई टेक हिम टू हिज शूटिंग स्पॉट एंड आफ्टर ड्रॉपिंग हिम, will I miss the photo opportunity? Definitely not. I take selfies, and Rajni was so impressed. He takes his permanent marker and writes on the bonnet of the car, "Thanks for being a wonderful human being. With love, Rajni." मैंने उसका भी तस्वीर ले लिया. So the value of car was increased. हाँ. So now the question is, should I sell this car? Being a Rajni fan, I might not sell. If the intention is to sell this car, do you think the value of this car is just 25 lakhs? I can go to Quicker जैसे ऐप में I can upload the photos because now I have photos. I have a photo to prove this car has been acknowledged by none other than Rajni. So I can upload and I can auction it. And this Quicker में auction कर सकते हैं. जैसे बोलते हैं ना हिंदी में नीलामी. So you can auction it, and some of the die-hard Rajini fans can buy this car for 20, 30 lakhs, 35 lakhs, 40 lakhs. Rajini fans are crazy. They can quote any number. So for sure, let's assume value of the car is for sure 30 lakhs minimum guaranteed, thanks to his signature. Now you tell me, should I go to my friend after a month? What is my loss now? Can anyone write? Should I go to my friend? If yes, what is my loss? रितु जी बोल रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए. निशा ji बोल रहे 25. I am very glad. I don't have to explain much because you are such a smart bunch of audience that you are able to grasp the concept so quickly. Very good. I'm glad you are giving the right answer. Yes, my loss is 25,000 because I will never ever go to my friend's house. Yes, मेरा लॉस हो सकता है कि 5 लाख प्लस 25,000, 5,25,000 इफ आई गो. अगर मैं जाऊंगा तो मेरा लॉस होगा. क्यों? इफ आई गो आई हैव ए राइट टू सेल एट 25 एंड बाई बैक द सेम कार एट 30 lakhs. तो ऐसा करूंगा तो लॉस होगा ना. माई फ्रेंड वुड बी वेरी ईगर, उसको पता है ये सब हुआ है, तो ही वुड से कि अच्छा चलो रेड कारपेट तो बिछा दिया, कार्तिक कब आएगा. बट आई विल नेवर एवर गो. आई विल नेवर एवर गो. सो व्हाट इज माई ओनली लॉस? जो तो 25,000 जो मैंने पे किया था, assuming कि this right will come handy, that has gone in vain. So my only loss is 25,000. Imagine what is the value of this. What would be my loss if the value of this car goes to 50 lakhs? What would be the loss if it goes to 50 lakhs? Anyone comment? Okay. Okay, great. Yes, perfect. So even if car का value 1 CR तक भी गया, I have nothing to worry. मेरा maximum loss है 25,000. That's the beauty of option. Worst case scenario, my maximum loss is to the extent of premium paid. Best case scenario, my profit is unlimited. So uh, this is how the option payoff is calculated. I think I Sir, underestimate. Yeah. won't the call option also be observed at the same time when the put option is there? Or there must be someone who must have done the call option क्या है? for that. Can you come again? क्या है? नहीं, ये in this case scenario it is just the one thing, but then अगर in actual market जो भी पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है उसके सामने पुट ऑप्शन रहेगा एंड पुट ऑप्शन के सामने कॉल ऑप्शन ना ना रहेगा. ना ना. कॉल It ऑप्शन will के not. कॉल ऑप्शन बाई किया है तो कोई कॉल को सेल किया है. सी कॉल एक सेपरेट ट्रेड है, पुट एक सेपरेट ट्रेड है. Okay. कॉल कॉल को सी कॉल बाई किया मतलब कोई कॉल सेल किया, दैट इज वन काउंटर पार्टी. मैंने कॉल बाई किया है तो कोई मुझे कॉल सेल किया. पुट क्या है कि पुट इज ए डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट. Strategy. कोई पुट बाई किया है, कोई पुट सेल किया है. सो कॉल बायर के अगेंस्ट जो है वो पुट बायर नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. Okay. Yeah.
Okay. ओके, कॉल बायर के काउंटर पार्टी है कॉल सेलर. Okay. ओके, तो दैट्स हाउ इट यूजुअली गोस. Fine. ओके, सो ये हो गया आपका पे ऑफ. नाउ आई थिंक स्वामिनी, आर यू देयर? Yes, yes, Karthikeya. So I think I have almost lapsed the time allotted to me, and maybe we may. Sir, tell us Uh, little bit about hedging between this both. If you can explain us. sorry. Can you tell us the hedging, sir? Hedging of odd and So all? now, yes, yes. Now, what you can do once you understand the logic and how this contract behaves, so you can use this call option and put options like an insurance policy. Now, how? Let's assume I have got a portfolio, or let's assume I have got a Reliance in my Demat account. So obviously, the Reliance is a equity portfolio that I have created. I am bullish on Reliance in years to come or in months to come. I want Reliance price to go up. Now, uh, let's assume for next couple of weeks or next couple of months, I am not bullish on Reliance, or because of this war scenario, or because of this interest rate, or because of this political uncertainty. For some reason, it is making me nervous. It may come down. It is making me skeptical about next couple of months. So what I can do now, I can create a hedge by buying a put option. Now, what is put option? Now, put option is an instrument of, it's a contract where I will benefit if the stock goes down or the underlying goes down. Correct? So, I have a Reliance in my Demat account, which will benefit if the stock goes up. So, by buying a put option, it's a kind of an insurance. Because what happens if market goes down, this put option will make money. So this is how you usually hedge. But it is not as simple as चलो मुझे put buy करना है तो मैं कोई भी put buy करता हूँ. So here you have to pick the right strike price, because buying a put option means what? You are buying a right to sell. तो सेल करना है, बट क्या प्राइस पे सेल करना है वो भी इक्वली मैटर करता है. तो सेल करना है बोल के मतलब आपका परचेज प्राइस होगा रिलायंस और से 1400, एंड यू आर परचेजिंग ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1200. दैट मीन्स इट इज टू आउट ऑफ द मनी. टू आउट मतलब वो अगर वो इट इज लाइक अंडर इंश्योरेंस. मेरे पास एक हेल्थ मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, उसका सम एश्योर्ड नॉट इवन 1.5 lakhs. So it is under insurance, because one hospital bill will it can negate 5 years का saving. अगर ऐसा कुछ hospital bill है, तो what is equally important, taking the right insurance amount. So यहाँ put option करना buy करना है as a insurance. तो इसके बाद हमको क्या डिसाइड करना है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा होना चाहिए. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर आपको हेड्ज एडेक्वेट रखना है तो जो आपका इनिशिएटेड प्राइस है उसका आप सेम स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मे बी आप जब इसके ऐप के ऊपर जब ट्रेनिंग होगा तो आप उसको, एक सेकेंड, यू आर एबल टू रीड माई स्क्रीन? नो राइट, एक सेकेंड. सी, दिस इज हाउ इट इज. अगर आपका if you are purchasing XYZ stock at say 1500, ये आपका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है. दिस इज योर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब you want to you want to create a bullish position. You are expecting this XYZ to go higher. 1500 पे आपने ले लिया, 1600, 700, 800, जो भी आपका टारगेट है. मे बी योर टारगेट इज 2000 प्लस हो सकता है. नाउ नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में आपको लगता है कि ये नीचे आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? ये नीचे आएगा बोल के आप सेल करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो यू फील चीटेड. अरे मैंने तो अच्छा स्टॉक बाई किया था, जस्ट बिकॉज आई वाज नर्वस आई केम आउट. तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ सेलिंग व्हाट यू डू, you buy XYZ 1500 put option at let's assume say 20 rupees. अभी ये क्या है, आपको ये स्क्रीन अगर जब ये ऐप में देखेंगे ना तो मोरलेस ऐसे ही दिखेगा. तो 1500 क्या है? दिस इज स्ट्राइक प्राइस. यहाँ 1500 इज नथिंग बट स्ट्राइक.
ये 20 रुपीज क्या है? दिस ₹20 क्या है? इसे हम बोलते हैं प्रीमियम। और XYZ क्या है? इट इज द अंडरलाइन। ये पुट है, सो इसका मतलब है राइट टू सेल, है ना? So this is the contract that I am going to buy. I have purchased XYZ at 1,500 as a hedge, as a insurance. I am also buying XYZ 1500 put option at 20 rupees. इसका मतलब ये है कि I have a right to sell XYZ at 1,500. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ वर्स्ट केस में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाऊंगा। हाँ, तो इसके लिए आपका कॉस्ट आया 20 रुपीज। सो दैट मीन्स अगर कल ऊपर गया तो आई विल नॉट बी वरीड। 1520 के ऊपर मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। इट हैज टू बी अबव 1520, बिकॉज अभी मैं इसको कॉस्ट को ऐड करके मान के चल रहा हूँ। माई कॉस्ट इज 20 रुपीज, इनिशिएटेड प्राइस इज 1500, तो ये मान के चल रहा हूँ कि 1520 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट सिनेरियो स्टार्ट होता है। अगर स्टॉक नीचे आता है तो यस यहाँ लॉस आएगा, बट जितना लॉस यहाँ आएगा उतना ही प्रॉफिट यहाँ से आएगा, बिकॉज पुट विल बेनिफिट इफ द मार्केट गोज डाउन। अगर मैंने ये नहीं लिया होता, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया होता, देन ये जितना नीचे आता उतना मेरा एक्चुअल लॉस बनता। तो फॉर एवरी लॉस बिलो 1500 आई हैव दिस पुट ऑप्शन विच विल नेगेट द लॉसेस। जैसे हमने वो बेंज का एग्जांपल हमने ले लिया, बेंज का वैल्यू 15 लाख हो गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया 10 लाख माइनस कॉस्ट। ठीक वैसे ही यहाँ अगर हमारा वैल्यू 1400 आया, जो रिलायंस XYZ का वैल्यू 1400 आया, तो क्या होगा? 1400 आया तो फ्यूचर यहाँ आपका स्टॉक में 100 रुपीज का लॉस आएगा, नो डाउट। यहाँ 100 रुपीज का लॉस आया, बट यहाँ आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना, बिकॉज यू हैव ए राइट टू सेल एट 1500 एंड बाई बैक एट 1400। तो 100 रुपीज का प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना? 20 रुपीज। तो आपका 80 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 80 रुपीज प्रॉफिट। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? 100 रुपीज का लॉस, 80 रुपीज का प्रॉफिट, तो टोटल आपका ₹20 लॉस। तो दिस इज हाउ द हेडजिंग वर्क्स। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा कंसिडरिंग टाइम, दिस इज the quickest possible example that I could give. Okay. If necessary, we may have one more session. Swamini, I think we may have to take one more session just to help them relate these concepts in market, or maybe if you can arrange one more session with any product specialists who are familiar with the option right, or Orin Light, so that they can just see how to find this contract, and whatever I have discussed today, they should be able to see it. So what I have done, I Okay, have let just me check explained. with the organizer. Huh. Let me check with the organizer how they are planning the session flow, and accordingly we will get it done. Yeah. So I think Sir, what with the about time that we have futures? allotted, we have Futures? discussed what are options, what are derivatives, what are options, call option, put option, from the expiry centric point of view, from the payoff point of view. So this is the very primary understanding that you should have, because otherwise क्या हो जाता है कि ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन मन में डेवलप करेंगे। कॉल ऑप्शन मतलब बुलिश, पुट ऑप्शन मतलब बैरिश, उसके आगे पीछे कुछ नहीं पता है। दैट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, understanding. So I want you to understand from the expiry centric point of view, and this is the foundation. Once the foundation is clear, now it is very easy. अगर next session में ना, या अगर किसी को आप इसे if you want to add on to this, then you can discuss how to calculate that premium. It has a two bifurcation: intrinsic value, time value, then the concept of moneyness, in the money, at the money, out of the money, types of options, American options, European options. तो ये सब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज आप डिस्कस कर सकते हैं. इट्स क्वाइट रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. Sir, what So the about futures? Futures is again a different topic by itself. what is it? Come again? Futures and options we always have. फ्यूचर इज वंस अगेन वन मोर सेगमेंट. जैसे ऑप्शन एक सेगमेंट है, ऐसे ही एक फ्यूचर का भी एक सेगमेंट है.
विद a very different payoff. अभी हमने ऑप्शंस में कैसे डिस्कस किया कि अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, वैसे डिस्कस किया ना, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है. मे बी दैट इज अ सेशन दैट वी कैन कंसिडर टेकिंग वन मोर, बिकॉज विद द टाइम दैट वी हैव, 1.5 hours, it's very difficult to explain future along with options, so that requires a dedicated session. Okay, all right. Thank you, Kartikeya, for today's session. And I will definitely speak with the coordinator, with the organizer, how they are scheduling. And rest, I would request friends ki please share videos as a testimonials on today's topic. It will be very much beneficial for us too. Okay, Trishla, are you there? But before that, can anyone at least, just give some hints whether you have really understood this topic? Because by now you would have figured it out. I am from South, so I might not be so authoritative in talking to you in Hindi. फिर भी कोशिश तो किया है हिंदी बात करने का. So most of the time, I think unknowingly, unintentionally, English ज़्यादा आया होगा. Hope still I was making. It was very clear. Sorry. It was very clear. Okay, thank you. Super section. Thank you so much. Thank you, Amrita. Sir, very well explained. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Swamini, over to you. Thank you. Thank you, Kartikeya. Thank you all for attending.